گستاخ نبی تجھ کو ہم پھاڑ کے رکھ دیں گے، ہم چیر کے رکھ دیں گے، ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، یہ وعدہ ہمارا ہے۔ زکیہ پڑھ لیں آپ، الحمد والولا پڑھ لیں آپ پڑھیں نا، آئے تو صحیح آپ، بلکہ کچھ نہیں پڑھتے نا، ہدایت بخشش ہی پڑھیں۔ سبحان اللہ، ہدایت دیکھیں، جب یہ بات ہوئی نا کہ وہ گئے کیسے، نور تھے، بشر تھے، کیا تھے، تو کہتے ہیں ان کی حقیقت کو تو کون جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا نا، تو ملنے گیا کون سے، ایک مقام پہ کہتے ہیں بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب ہے، حضرت قادر گیا، کس سے ملنے گیا، تو کہتے ہیں لمعے باطن میں گمنے، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا۔ سبحان اللہ، سبحان لمعے اور کون گیا، اس کو اور واضح کر رہے ہیں کوئی صوفی اس کے، بلکہ میں آپ کے سامنے شعر پڑھتا ہوں اور پھر میں اپنے سارے صوفیہ بزرگوں سے گزارش کرتا ہوں ان دو مصروں پہ غور کریں اور کبھی اس کی تشریح تنہائی میں بیٹھ کر خود کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کا خادم ہوں، میرے صوفیوں، میرے پیروں، میرے آقاؤں، ہم آپ کے خادم ہیں، آپ ناراض نہ رہیں۔ امام احمد رضا سے وہ بہت مظلوم آدمی ہے، کیسا مظلوم کہ جس نے لڑا ہے بدعقیدوں سے، جب وہ تمہارے رسومات کے خلاف، بلکہ تمہارے کہ ہمارے بھی وہ رسومات ہیں، وہ ان کو گالیاں دیتے ہیں اور آپ بھی ان کو اپنا نہیں سمجھتے، تو کس قدر اس شخصیت پر جو ہے وہ ظلم ہے۔ میری گفتگو سن کے آپ ناراض نہ ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، جہاں تک آواز پہنچے۔ دیکھو وہ کیسی تصوف کی بات کرتے، کہتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف۔ یہ کوئی غیر صوفی بول سکتا ہے؟ صوفی کے علاوہ ہے کسی میں ہمت؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں غیر صوفی تو اس کی تشریح بھی نہیں، بے شک حق ہے، حق ہے، بے شک۔ آپ سے کہتا ہوں کوئی اس کی تشریح کر کے بتائے نا، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے۔ اور اگر میں مقال العرفاء سے زندہ باد، زندہ اگر تصوف کی گرہ کھولوں یہاں، کیا بات ہے، اگرچہ میں صوفی نہیں، میں صوفیوں کا غلام ہوں، آپ اٹھ کر بھاگ جائیں۔ یہ مجمع متحمل نہیں ہے کہ وہ بات کو سن سکے، لیکن میں وہ بات چھیڑنا بھی نہیں چاہتا جس کو آپ نہ سمجھ سکیں، کیونکہ ہمیں یہ پابند کیا گیا ہے کہ لوگ جتنا سمجھے اتنی بات کی جائے۔ اگر کسی کو شوق ہے کہ امام احمد رضا کا تصوف میں مقام کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے خادم کی حیثیت سے۔ اور سے یہ کر رہا تھا بات ختم کرتے ہوئے کہ ملک شام کے اس سید صاحب نے کہا حکیم اجمل خان صاحب کو اور ہائی کورٹ کے وکیل صاحب کو کہ بھائی اگر دوستی قائم رکھنے تو مولانا احمد رضا کے خلاف آپ کچھ نہیں کہیں گے، اور اگر آپ کچھ کہیں گے تو آج سے دوستی ختم، کیونکہ میں نے ان کو بارگاہ رسالت میں دیکھا، میں نے ان کو بارگاہ رسالت میں دیکھا۔ تو انہوں نے پیر پکڑ لیے، کیا دیکھا بتانا پڑے گا۔ کہا بچوں بتانے کی چیز نہیں ہے، صاحبوں بتانے کی چیز نہیں ہے، بھائیوں بتانے کی چیز نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ نے جب چھیڑا ہے تو اب چھوڑیں گے نہیں، آپ بتائیں کہ آپ نے بارگاہ رسالت میں کیا دیکھا۔ بس اسی پہ اپنی گفتگو مکمل کرنے لگا ہوں۔ قبولیت کی ان گھڑی کے اندر امام اہل سنت کے حوالے سے ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ میرے ٹوٹے پھوٹے جملوں کو قبول کرے اور اس مرد قلندر کے مزار پر قیامت تک رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ فکر امام احمد رضا جو عشق رسول کی ترجمان تھی، اللہ اس فکر پہ ہم سب کو سلامت رکھے۔ سنیے، ملک شام کے اس سید صاحب نے کہا کہ سنو سنو لوگوں، حکیم صاحب، وکیل صاحب، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کا دربار اب بھی سجدہ ہے، صوفیہ کے نزدیک اب بھی سجدہ ہے، اب بھی سجدہ ہے حضور کا دربار، اور اللہ والوں کو وہاں حاضری کی شہادت نصیب ہو۔ سبحان اللہ، اللہ والے آج بھی وہاں پر حاضر ہوتے حضور کے دربار میں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے سجدہ ہے حضور کا دربار، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ اپنے مدرسے کے سالانہ جلسے میں یہ تو حدیث پڑھتے ہو نا کہ عصر کی نماز کے بعد روزانہ شیطان کا دربار پانی پہ سجتا ہے اور اس کا تخت لگتا ہے، اور وہ طالب علم والی حدیث بہت کثرت سے لوگ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا یارو، صاحبو،
आपने शैतान का रोजाना दरबार सजना मान लिया है, मरदूद का दरबार रोजाना सजना मान लिया, महबूब का दरबार सजने से इनकार करते हो। किसका कलमा पढ़ा है तुमने? तुमने कलमा किसका पढ़ा है? कम से कम कलमा पढ़ाने का तो ख्याल करो। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी ऐसा हो गया। तुम कम से कम कलमा पढ़ाने का, बहरहाल तुम नहीं मानते ना मानो, मैं तो आशिकों की बात कर रहा हूँ। का हुजूर का दरबार सजता है। एक दिन मैं अपने नाना जान के दरबार में हाजिर था। सुनो इमाम रज़ा की शान, इमाम अहले सुन्नत की शान। शामी बुजुर्ग कहते हैं रसूलुल्लाह का दरबार सजा था, मुझे हाजिरी का शरफ नसीब होता है। मैं हाजिर हुआ तो मैंने देखा तख्त पर अल्लाह के रसूल जलवागर हैं और सामईन बैठे हुए हैं। उसमें अवाम तो नहीं होते ना, उसमें बड़े बड़े औलिया होते हैं, बड़े बड़े अब्दाल होते हैं, बड़े बड़े अख्ताब होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वो शामी बुजुर्ग कह रहे हैं। जिम्मेदारी हमारी है, बात की तुम हवाला पेश कर सकते हैं। तो अल्लाह अकबर, शामी बुजुर्ग न मुरीद है, न खलीफा है, न शागिर्द है, बल्कि कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह का दरबार सजा था, मेरे नाना जान तख्त पर जलवागर थे, और फिर मेरे नाना जान ने एक जवान से कहा उठो, और उठ करके मेरे सामने मेरी शान और मेरी अजमत और मेरी बुजुर्गी बयान करो। वो जवान जब बयान करने लगा तो हुजूर का चेहरा ऐसे दमदमा रहा था जैसे 14वीं रात का चांद जब दमदमाता है या गुलशन में गुलाब खिलता है। हुजूर के चेहरे पे तबस्सुम थी, हुजूर उसको दाद दे रहे थे। मुझे उस पे रश्क आया कि कितना खुश नसीब है ये जवान जिसको नबी की बारगाह में बोलने की इजाजत है, नबी के सामने नबी की नाते, नबी की बातें करने की इजाजत है, और हुजूर खुश हो करके उसको दाद देते हैं। तो जब वो महफिल खत्म हुई तो मैंने पूछा नाना जान, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये खुश नसीब जवान कौन है जिससे आप इतनी खुशी से अपनी शान सुनते हैं? तो आका ने फरमाया ये बरेली का अहमद रजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑल इंडिया मुफ्ती आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस उर्से सदसाला, उर्से आला हजरत, उर्से अमानत आला हजरत फैजान मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है, बरेली का अहमद रजा। आप अंदाजा फरमाएं, वाह 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 वाह। अहमद रजा का मकाम है जिन्होंने मिला नहीं, न शागिर्द न खलीफा। अब से आप अंदाजा करें, इमाम अहमद रजा ऐसी अहमियतों के रज़मतों के हामिल है। हमने न उनको पढ़ा, न सही तौर पर उनका तारुफ पेश किया। बड़ी माजरत के साथ 1450 साल गुजर चुके, जो कौम अपने नबी का सही तारुफ न पेश कर सकी, वो कौम एक सदी में अपने बुजुर्गों का क्या तारुफ पेश कर सकेगी? यहाँ तो हाल यही है कि माअज़ल्लाह हम गुनाहों में डूबे हैं, अल्लाह रसूल को भूले हैं, अपने बुजुर्गों को भूले हैं। सुन्नियों, अपने नबी की सीरत लोगों के सामने बयान करो, अपने आकाओं की जिंदगी लोगों के सामने बयान करो। लोग अपने मिट्टी को सोना बनाकर पेश कर रहे हैं और हम अपने सोने को सोना कहने में शर्माते हैं। हम कभी इमाम अहमद रज़ा के तारुफ में शर्माते हैं, कभी गौसे आजम के तारुफ में शर्माते हैं, कभी गरीब नवाज के तारुफ में शर्माते हैं, कभी महबूब इलाही के तारुफ में शर्माते हैं। लेकिन हम क्यों शर्माते? हमें खुद नहीं पता है तो हम दूसरों के सामने क्या पेश करेंगे? अपनी शख्सियात को भूले बैठे हैं। शख्सियात को याद करो, इसलिए कि किसी मुफक्किर ने कहा था जो अपने माजी की यादों पर अपने मुस्तकबिल की बुनियाद रखते हैं वो कौम कभी भुलाई नहीं जाती। इसलिए इन हस्तियों को याद रखो, याद रखो अपने बुजुर्गों को, याद रखो इमाम अहमद रजा को, याद रखो हुज्जतुल इस्लाम को, याद रखो मुफ्ती आजम को। वो मुफ्ती आजम जिसने फतवा लिखा तो हुकूमत बदलवा दी, लेकिन अपने फतवे को न बदला। जो अल्लाह अकबर कहलाता था मुस्तफ़ा रजा, लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदा व जावेद सुन्नतों की एक तस्वीर था, मुजस्सम इश्क़ रसूल था। और फिर उस मुजस्सम इश्क़ रसूल जिसे दुनिया मुफ्ती आजम कहती थी, जो उठता था तो सुन्नतों के माहौल में, जो बैठता था तो सुन्नतों के माहौल में, जो चलता था तो सुन्नतों के माहौल में, जिसने शिद्दत की भूख लगने पर भी कभी 5 उंगलियों से खाना इसलिए गवारा न किया, इसलिए कि 5 उंगलियों से खाना गवारों का तरीका है, इसलिए उसने गवारा न किया। हम लोग तो भूख लगती है तो 5 उंगलियां क्या बल्कि दूसरा हाथ भी शामिल कर लेते हैं, लेकिन वो मुफ्ती आजम ऐसा मुफ्ती आजम था, वो ऐसा मुजस्सम इश्क़ रसूल था जो शदीद भूख लगने पर भी सिर्फ 3 उंगलियों से इसलिए खाता था कि ये नबी की सुन्नत है। भूख की शिद्दत भी
नबी की सुन्नत तर्क नहीं होने देती थी। और फिर उसी मुफ्ती आजम ने जिसकी तरबियत की थी, जिसको सुन्नतों के सांचे में ढाला था, जिसको संवारा था, इसलिए कि पीर वही पीर है जो अपने रंग में अपने मुरीदों को ढाल दे, और उसी पीर ने फिर अपने रंग में उसको ढाला था जिसको इस वक्त पूरी दुनिया अमानत आला हजरत कह रही है, अमानत आला हजरत कह रही है, करामत मुफ्ती आजम कह रही है, परतबे मुफ्ती आजम कह रही है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अमानत आला हजरत को देखा। और बड़ी माजरत के साथ अगर बुरा लगे तो पीलीभीत वालों मुझे माफ कर देना, मुझे पता है आप जज्बाती ज्यादा हैं, लेकिन आप बुरा लगे तो माफ करना। हम लोग जब किसी शख्सियत को देखते हैं तो हम लोग अकीदत से कम तनकीद से ज्यादा देखते हैं, क्योंकि हम लोग दावत की फील्ड के लोग हैं, हम हक़ाइक़ की फील्ड के लोग हैं। पहले तनकीद से देख लेते हैं, जब पसंद आ जाते हैं तो फिर ऐसी आंखें बंद करते हैं कि फिर आंखें खोलते ही नहीं। मानने से पहले हम आंखें खोल के देखते हैं, और जब मान लेते हैं तो फिर आंखें बंद रहती है, फिर हम कभी आंखें नहीं खोलते। लेकिन मैंने अमानत आला हजरत को पहली मर्तबा देखा, दूसरी मर्तबा देखा, तीसरी मर्तबा देखा, फिर बार बार देखा। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में वो ऐसे बसे। मौजूदा दौर की चंद बड़ी हस्तियों से मैं बहुत मुतासिर हुआ, जिनमें से एक अमानत आला हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुतासिर किया वो उनका सुन्नत रसूल पर अमल था। सुभान अल्लाह, आमिले सुन्नत रसूल थे। मैं पिछली मर्तबा से पेवस्ता जब अल्लामा रज़ाए रसूल साहब मिस्र के लिए जा रहे थे तो मौलाना आशिक साहब ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हज़रत का ये हुक्म है कि भैया की रुखसती पर आप आएँ। मैंने सोचा कि बड़े बड़े उलमा तो बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाते हैं, और उनके घर में खुद इतने बड़े बड़े दामाद और भतीज दामाद और भांजे दामाद कई सब बड़े बड़े उलमा हैं, लेकिन अगर उनका हुक्म है तो मैंने अपने अमीर मोहतरम से कहा कि हज़रत का हुक्म है। हज़रत ने फरमाया कि आगे पीछे करके जाएं। जब मैं स्टेज के लिए निकल रहा था तो मैं उनके फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू की तरफ मैंने अपने कानों को मुतवज्जे किया, तो मैंने सुना कि वो किसी को डांट रहे थे। तो हालांकि मैं फ़ोन की गुफ्तगू पर किसी की तवज्जो नहीं करता, क्योंकि मैं उसको सरगोशी समझता हूँ, और जब दो लोग सरगोशी करें तो तीसरे को कान लगाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन चूंकि वो डांट रहे थे तो मैंने सोचा क्यों डांट रहे हैं, इसलिए कि डांटने के लिए तो मैं इतना ही तो गौर कर सकता था, क्योंकि गुस्सा किस वजह से है। लेकिन मैं हैरान रह गया कि अब भी ऐसे लोग आमिले सुन्नत मौजूद है कि जो अपनी ज़ात के लिए नहीं डांटते बल्कि रसूल पाक के लिए डांटते हैं। वो क्यों डांट रहे थे, वो किसको डांट रहे थे, मुझे अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं इतना अंदाज़ा कर सका कि उनको उस दिन जिसने जुब्बा पेश किया था या जिसने उनका जुब्बा सिला था, वो उस जुब्बा देने वाले को डांट रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि तुमने जुब्बा इतना लंबा भेजा कि वो टकने के नीचे है, और ये खिलाफ सुन्नत है। आइंदा इसका ख्याल करना कि जब भी मेरा जुब्बा हो तो वो टकने के ऊपर हो। हालांकि आम तौर पर इसका ख्याल नहीं किया जाता, लेकिन इस तरह का ख्याल करने वाले लोग थे। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोग हमारे दरमियान, बल्कि मैं तो कहता हूँ मेरे मसलक अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत की इससे बड़ी दलील क्या होगी कि माजी करीब में भी लोग इस कदर पाबंद शरअ, पाबंद शरीयत, पाबंद सुन्नत मौजूद है। तो और फिर अमानत आला हजरत, वाकई अमानत आला हजरत, आला हजरत फना फिर रसूल थे, और अमानत आला हजरत फना फिर शेख थे, और आला हजरत में फना थे। सुभान अल्लाह, सुभान। जब मिलो कभी महफिल खत्म ही ना हो जब तक मुफ्ती आजम और आला हजरत का जिक्र न हो, और करें तो ऐसे डूब के करें कि सुनने वाले के दिल में मुफ्ती आजम और आला हजरत बस जाए, इसने डूब के करें। तो फिर मैंने सोचा कि आला हजरत ने भी अपना रंग ऐसा चढ़ाया था, कहा मैं भी 66 में जाऊंगा और तू भी 66 में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो कितनी मुमासिलत है। आला हजरत भी 56 में पैदा हुए, आला हजरत भी 56 में पैदा हुए।
अमानत आला हजरत भी 56 में पैदा हुए। सुभान अल्लाह। आला हजरत भी 21 में गए, देखे ना सुभान अल्लाह से वाह। फनाइयत की बरकत है। फनाइयत। हालांकि मुझे नहीं पता था कि वो 56 में पैदा हुए। अभी मौलाना अहमद रजा साहब जो है उन्होंने बताया तो मुझे पता चला कि वो इमाम अहमद रजा 1856 में पैदा हुए। अमानत आला हजरत 1956 में पैदा हुए हैं, ठीक 100 साल के बाद, सही। और उसके बाद फिर आला हजरत 1921 में दुनिया से गए। अमानत आला हजरत 2021 में दुनिया से। इश्क से ये बरकतें होती है, ये अताएं होती है, रहमतें होती है। अब अमानत जो होती है ना, अमानत वो सीने से लगा के रखने के लिए होती है। अमानत जाय करने वाली नहीं होती, अमानत सीने से लगा के रखने वाली होती है। वो अमानत रसूल भी थे, अमानत आला हजरत भी थे, अमानत मुफ्ती आजम भी थे, और अमानत अहले सुन्नत भी थे। इन्हें भी पालो, अब इनको सीने से लगाए रखो, दुनिया आखिरत में कामयाबी होगी इंशाल्लाह। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अल्लाह ताला, अच्छा हाँ जी इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये मोहब्बतों के पैगाम मिलते रहेंगे। मैं उलमा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी देर तक आप बैठे रहे। हालांकि खतीब और अदीब के लिए अगर आप बैठते तो बड़ी बात थी, लेकिन एक ऐसा बंदा जो खुश को गुफ्तगू करने के अलावा चीख पुकार और दर्द दिल के सिवा कुछ जानता ही ना हो, अगर ऐसे बंदे के लिए आप बैठे हैं तो आपका बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। पीलीभीत वालों, आपके एहसानात में फरामोश नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। और हमारे उलमा का भी शुक्रिया। आजकल तो हमारे मिंबर का उसूल है मुशायरों की तरह अपनी गजल सुनाई और चल दिए, लेकिन आप लोग बैठे रहे तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सादात का भी, उलमा का भी, अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको फिक्र रज़ा का सच्चा अमीन बनाए। इश्क रसूल की हमें अल्लाह तबारक व तआला दावत देने की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत रसूल पे जिंदा रखे।